3. Find the Fourier expansion of fx equal to root 1 minus cos x and it is given in 0, 2 pi. मतलब ये full range Fourier series है. तो we'll write here what is f of x and it is 0, 2 pi. यहाँ पर कुछ भी liberties नहीं मिलेगी. हमें पूरा a0, an, bn सब find करना है. तो a0 formula is 1 upon 2l having integration from limit 0 to 2l and the function is fx dx. Okay, तो अब यहाँ पर हम लोग substitute करते हैं. a0 is 1 upon 2 pi with integration we've got 0 to 2 pi and the function we have square root of 1 minus cos x dx. Okay, अब ये square root of 1 minus cos x को थोड़ा simplify करते हैं. 1 minus cos theta is a formula that we must remember. मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ. 1 minus cos of theta is a formula. 2 sine square theta by 2. ये 1 minus cos theta का conversion होता है in trigonometry. We are going to use that over here. So it will be 1 upon 2 times pi integration 0 to 2 pi and अब square root के अंडर आ जा रहा है 2 sin square x by 2. वहाँ थीटा है, यहाँ पर x यूज करना पड़ेगा. 2 sin square x by 2. So let's see now how the integration is done. सबसे पहले root of 2 I should remove outside. I will write square root of 2 divided by 2 times pi and then writing integration 0 to 2 pi. और रूट और स्क्वायर साइन का कैंसिल हो गया तो I get sin x by 2. Come on, that is an easy function to integrate. Sin x by 2. So a0 we write is equals to a0 equal to root of 2 by pi. This is same. हम अभी sin x by 2 को इंटीग्रेट करते हैं which is minus cos x by 2 and upon 1 by 2 with limit 0 से लेकर 2 times pi. So sin x by 2 का integration minus cos x by 2 upon half. We have got to put the limits. a0 equal to root 2 upon 2 pi. पहला limit put करता हूँ minus cos of x की जगह 2 pi divided by 2 is going to make it cos pi and upon half. Then minus of minus x की जगह 0 cos 0 and divided by upon half. cos pi का वैल्यू -1 होता है तो a0 इक्वल टू रूट ऑफ 2 by 2 pi. cos pi का वैल्यू रिमेंबर -1 होता है. माइनस माइनस 1 माइनस 1 हो जाए +1 हो जाएगा एंड 1 डिवाइडेड बाय वी हैव हाफ. यहाँ पर भी cos 0 का वैल्यू 1 तो 1 अपॉन इट बिकम्स हाफ. So which further is 2 upon half. So a0 is equals to root 2 upon 2 pi. We get 2 upon half. Upon half and 2 cancel out. I feel the answer is now a0 is equals to 2 root 2 and upon pi. ये हमारा सबसे पहला आंसर हो गया. a0 का वैल्यू 2 root 2 upon pi. I will highlight it. Mind you, it's a full range problem. a0 ही नहीं, an भी solve करना है, bn भी solve करना है, सब. 1 upon l we have. इंटीग्रेशन का लिमिट 0 से लेकर 2l. इंटीग्रेशन फंक्शन fx cos n pi x by l dx. What does it become? an is equals to 1 upon pi. Having integration 0 to 2 pi. फंक्शन क्या था? रूट ऑफ 1 minus cos x and into we have a cos nx dx. हमने देखा ये रूट 1 minus cos x को कन्वर्ट कर सकते हैं
क्या कन्वर्ट कर सकते हैं? वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस पार्ट, वी कैन मेक इट √2, हम √2 बनाकर साइन ऑफ x/2 एंड इंटू कॉस एन एक्स लिख सकते हैं, राइट? अभी देखा ना ऊपर, 1 minus cos x is, see, ये conversion, √2 sin x/2 can be written. Next what? You have to remove √2 outside. An is equals to square root 2 upon pi, और एक एडजस्टमेंट लाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 का. व्हाट फॉर? टू मेक इट 2 sin a cos b, टू मेक इट 2 sin x cos n x/2 और cos n x को एज अ 2 sin a cos b. आई राइट इट हियर. 2 sin a cos b फॉर्मूला होता था sin a plus b सॉरी, प्लस sin a minus b. 2 sin a cos b is formula. So an is equals to, we get square root 2 upon 2 times pi इंटीग्रेशन. देन बिकॉज अभी इंटीग्रेशन नहीं होगा, पहले कन्वर्जन होगा. इट इज नॉट गोइंग टू बी इंटीग्रेटेड, इट इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड 0 to 2 pi. 2 sin a cos b बन गया साइन ऑफ a प्लस बी. देखिए a प्लस बी क्या है, हाफ प्लस n x, n plus sine of a minus b, that's half minus nx dx. तो ये हमारा साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी बन जाता है, हाफ प्लस एन एक्स हाफ माइनस एन एक्स. भाई इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन n इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 2 पाई पाई, ये तो कॉमन रहेगा. साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है हाफ प्लस एन एक्स अपॉन, इन द डिनोमिनेटर हाफ प्लस एन. दूसरे का भी कॉस ऑफ हाफ माइनस एन एक्स, cos of half minus nx, and in the denominator half minus n. ऐसा इंटीग्रेशन होता है. लिमिट्स 0 to 2 times pi. cos half plus nx, cos half minus nx बन गया यार. लेकिन ये cos half plus nx में जब 2 pi सब्स्टिट्यूट होगा तो वैल्यू क्या बनेगी, ढूंढना पड़ेगा. we'll have to find out. यहाँ सॉल्व करके देखते हैं. cos half प्लस और माइनस n, और x की जगह पर अगर आ जाए 2 pi, what does it become? We will have to take 2 pi inside, so that it is 2 pi upon 2 plus or minus 2n pi. 2 pi अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 pi upon 2, which is cos of pi plus or minus 2n pi. It will become like this. तो अब इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. यस, और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. काम करते हैं, नेक्स्ट लाइन पर आ जाते हैं. You will understand it much better. We'll take it to the next line. Cos of pi plus or minus n2 pi को नेक्स्ट लाइन पर सॉल्व करते हैं. Let me adjust the tab. जी, we write it equal to cos of pi plus or minus n2n pi. और सिंप्लीफाई करते हैं. We simplified as cos a plus b का फॉर्मूला, which is cos a cos b, प्लस माइनस बन जाएगा माइनस प्लस, साइन ए साइन बी. cos a प्लस बी का फॉर्मूला था cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी. cos a माइनस b का फॉर्मूला था cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी. नाउ लेट अस पुट द वैल्यूज. cos पाई की वैल्यू -1 थी, cos 2n पाई की वैल्यू +1 है, माइनस प्लस. sin पाई की वैल्यू 0 और sin 2n पाई की वैल्यू 0. You know what answer do we get? We get the answer as -1. तो we come to know that कि अगर x की जगह 2 पाई सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये cos हाफ प्लस n 2 पाई या cos हाफ माइनस n 2 पाई बनेगा, और दोनों वे से आंसर क्या आ रहा है -1. When I substitute x की जगह पर 0, that is easy to understand because cos 0 तो 1 होता है. तो I will get the problem back to an is equals to square root of 2 upon 2 times pi inside the bracket
अपर लिमिट से बनेगा माइनस ऑफ -1 अपॉन हाफ प्लस n. Okay, this is one part. Then minus of -1 and divide by half minus n. Okay, this is upper limit minus lower limit पर आते हैं. Minus of cos 0 is 1 divided by half plus n. Minus of cos 0 is 1 and divided by half minus n. So it is minus of cos half plus n pi and 2 pi, sorry. Cos half plus n 2 pi का वैल्यू -1 है. वैसे cos of half minus n 2 pi का वैल्यू वो भी -1 है. लोअर लिमिट में cos 0 का वैल्यू वो 1 होता है, लेकिन माइनस साइन एज इट इज है. जैसे ही cos 0 का वैल्यू वो भी 1 होता है. सिंप्लीफाई करते हैं. लेट्स सी व्हाट वी गेट. an is equals to root of 2 upon 2 pi and see what is inside the bracket. माइनस माइनस प्लस हो गया 1 upon half plus n. Minus minus plus 1 upon half minus n. Again minus minus plus 1 upon half plus n. And again plus 1 upon half minus n. But every quantity has become positive. It means they are going to get added up. Yes. So same quantities को add करते हैं. an is equals to root 2 by 2 pi 1 upon half plus n 1 upon half plus n दोनों add हो जाता है तो बनता है 2 upon half plus n. Similarly 1 upon half minus n 1 upon half minus n is 2 upon half minus n. Now we must cross multiply and simplify them. We get an is equals to root of 2 pi क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. अब ये हाफ माइनस एन जाकर 2 से मल्टीप्लाई होगा. तो सी व्हाट वी गेट. ये हाफ माइनस एन 2 से जाकर मल्टीप्लाई 2 इंटू हाफ से इट बिकम्स 1 माइनस 2 एन जाइज 2n 1 माइनस 2n. फिर ये हाफ प्लस एन भी जाकर 2 से मल्टीप्लाई होगा. 2 इंटू हाफ इज 1 और n से 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 2n एंड डिनोमिनेटर हाफ प्लस n into a half minus n, a plus b into an a minus b. More simplification. We get an is equals to root 2 by 2 pi. Now see numerator. Numerator में minus 2n plus 2n cancel हो रहा है. We get a 2. In the denominator, it has become half square minus n square. Because it is a plus b into a minus b is a square minus b square. Further we see that an is equals to by 2 pi और ये 2 ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा. तो we are going to have in the numerator square root of 2. डिनोमिनेटर में एक तो पाई है, उसके बाजू में 1 upon 4 minus n square, right? Half का square 1 upon 4 minus n square. This 4 is going to get multiplied to n square and 4 will also become the numerator. तो ये पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई होकर बनता है 4 square root 2 and denominator will write pi into 1 minus 4n square. और भी बेटर वे से लिख सकता हूं just to simplify it as minus 4 square root 2 because मुझे ना प्रूफ में काम आएगा. डिनोमिनेटर में pi and 4n square minus 1. This is my finally simplified an. क्यों साइन चेंज कर दिया? वो ही रहने देता. हाँ दे सकता था बट मैंने एक्चुअली यहाँ प्रूफ देखा है. प्रूफ में ना यहाँ पर 4n square minus 1 चाहिए, इसीलिए 1 minus 4n square को I change into 4n square minus 1. So by the way this is my an. an हो जाने के बाद we have to solve bn now. bn is 1 upon l having integration 0 to 2l then f of x sine of n pi x by l dx. Okay, so let us substitute here. bn is equals to by 1 upon हो जाएगा pi. इंटीग्रेशन का लिमिट बन जाएगा 0 to 2 pi. इंटीग्रेशन का फंक्शन इफ यू रिमेंबर
अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ स्क्वायर रूट टू साइन एक्स बाई टू और उसके बाजू में साइन एन एक्स एंड डी एक्स है ना। फंक्शन तो यही है ना, रूट वन माइनस कॉस एक्स या फिर रूट टू साइन एक्स बाई टू लिखो, इट इज वन एंड द सेम। आई एम गोइंग टू ब्रिंग रूट टू आउटसाइड, so 2 square root 2, we have a divide by pi. I have to adjust 1 upon 2 and inside the bracket multiply by 2, ताकि मैं कन्वर्ट करने जाने वाला हूं 2 sin a sin b का फॉर्मूला। यस, 2 sin a sin b का फॉर्मूला। 2 sin a sin b का क्या फॉर्मूला है, लिख लेता हूं भाई। 2 sin a sin b इक्वल टू cos of a minus b and minus cos of a plus b। ये 2 sin a sin b का फॉर्मूला है। लास्ट टाइम यूज हो गया था 2 sin a cos b, इस बार यूज करना पड़ेगा 2 sin a sin b। सो वी गेट रूट टू अपॉन पाई, रूट टू अपॉन पाई। और हम यहाँ पर इंटीग्रेशन तो नहीं लेकिन कन्वर्जन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं। 2 sin a sin b, दिस बिकम cos ऑफ हाफ माइनस n x and minus cos of half plus n x dx, cos a minus b minus cos a plus b. Now this can be written as bn equal to root 2 upon pi, that remains same. I have got to integrate now. A cos का integration is sin half minus nx upon, in the denominator, half minus n. Similarly, दूसरे cos का भी integration sin of half plus n x and divided by half plus n with लिमिट 0 से लेकर वही 2 पाई सब्स्टिट्यूट करना है, तो cos का इंटीग्रेशन साइन इजीली हो जाता है। अब पुट करने वाले हैं लिमिट्स। लिमिट्स पुट करने के लिए देखिए, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको cos ऑफ हाफ प्लस और माइनस एन 2 पाई समझाया था, यहाँ पर मुझे देखना पड़ेगा व्हाट इज साइन ऑफ हाफ प्लस और माइनस एन 2 पाई इज इक्वल्स टू, सॉल्व करना पड़ेगा। साइन ऑफ इट बिकम्स 2 पाई अपॉन 2 प्लस और माइनस 2 n पाई। तो वी हैव टू सी इसका आंसर क्या है। इसका आंसर सॉल्व करते हैं, देखिए अगले स्टेप पर। आई विल जस्ट एडजस्ट द टैब। सो वी हैव गॉट टू सिंप्लीफाई इट एज इक्वल टू साइन ऑफ 2 पाई अपॉन 2 कैंसिल होकर पाई बन गया, प्लस और माइनस 2 n पाई हो गया। अगले स्टेप पर और भी सिंप्लीफाई, वी हैव टू मेक इट साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला, विच इज साइन पाई cos 2 n पाई प्लस माइनस cos पाई sin 2 n पाई sin a cos b प्लस cos a sin b इक्वल टू sin पाई का वैल्यू 0, cos 2 n पाई का वैल्यू 1 होता है, cos पाई का वैल्यू -1, लेकिन sin 2 n पाई का वैल्यू 0 होता है। अरे व्हाट इज दिस, सब तो 0 हो रहा है। यस एग्जैक्टली, अपर लिमिट अगर 2 पाई पुट करोगे तो दोनों टर्म्स 0 हो जाएंगे, और लोअर लिमिट तो वैसे ही 0 है, sin 0 0 होता है। तो व्हाट वी कम टू नो ओवर हियर इज, यार ये तो bn इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2 अपॉन पाई के बाद इनसाइड द ब्रैकेट में तो सब कुछ 0 हो रहा है। यस, अपर लिमिट लोअर लिमिट एवरीथिंग इज गेटिंग आउट टू बी 0। तो bn का वैल्यू, बहुत खुशी हो रही है, bn का वैल्यू इज इक्वल्स टू 0 हो गया। तो an तो कुछ वैल्यू आया था, bn कुछ नहीं आएगा। अब हम लोग पूरा फोरियर सीरीज लिख सकते हैं। नाउ वी कैन राइट f of x equal to complete Fourier series a0 summation from 1 towards infinity is an cos of n pi x by l, फिर वैसे ही प्लस दूसरा समेशन from 1 to
infinity, you get bn sine of n pi x by l. We have the Fourier series statement here. अब इसके अंदर फंक्शंस कॉपी करते हैं. भाई एफ एक्स क्या है? एफ एक्स था अपना वो रूट ऑफ वन माइनस कॉस एक्स, ले आइए. सो आई गॉट एफ एक्स की जगह पर रूट वन माइनस कॉस एक्स. पहले एक एक टर्म को ले आऊंगा. एफ एक्स आ गया रूट वन माइनस एक्स कॉस एक्स. अब ये सब जगह भी सब्स्टिट्यूट करते हैं. चलिए करते हैं. इक्वल टू व्हाट इज ए जीरो? गेट ए जीरो ओवर हियर. ए जीरो क्या था? ए जीरो क्या था? ये टू रूट टू अपॉन पाई. आई एम गोइंग टू गेट ए जीरो हियर. ए जीरो का वैल्यू आ गया टू रूट टू अपॉन पाई. भाई ए एन क्या था? गो बैक एंड सी. ए एन क्या था? ये था माइनस फोर रूट टू अपॉन पाई फोर एन स्क्वायर माइनस वन. वो भी ले आइए. भाई एन की जगह सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. माइनस फोर रूट टू अपॉन पाई फोर एन स्क्वायर माइनस वन. और कॉस का एंगल है ना, इतना बड़ा नहीं रहेगा, वो बन जाएगा कॉस एन एक्स. बी एन क्या है? बी एन जीरो है. अरे वेरी गुड. बी एन जीरो है तो अब ये पूरा टर्म ही जीरो, लेने की जरूरत ही नहीं. दिस इज माई फर्स्ट आंसर. आई मीन द फोरियर सीरीज. ये तो बन गई फोरियर सीरीज. अब क्वेश्चन ने एक डिडक्शन भी पूछा है. डिडक्शन देख लीजिए जरा. क्वेश्चन ने फोरियर सीरीज के बाद एक डिड्यूस करने बोला है. हाफ इक्वल टू समेशन वन टू इन्फिनिटी वन अपॉन फोर एन स्क्वायर माइनस वन लाने बोला. मतलब समेशन ओपन नहीं करना है, वन अपॉन फोर एन स्क्वायर माइनस वन. देखते हैं कैसे करेंगे. वी हैव हियर रूट ऑफ वन माइनस कॉस एक्स. लेट दैट बी एज इट इज. स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस कॉस एक्स. इसको फिलहाल कुछ नहीं करते हैं, लेट इट बी. राइट हैंड साइड थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. आते हैं टू स्क्वायर रूट टू and we have an upon pi. From the summation part, I'm going to remove minus 4 square root 2 outside and even divide by pi outside so that I see कि summation में अब बचा क्या है भाई. summation में बच रहा है cos nx और denominator 4n square minus 1. अरे वाह, ये तो परफेक्ट है. यही तो चाहिए, 4n square minus 1. लेकिन न्यूमरेटर कॉस नहीं चाहिए. एज पर द रिजल्ट हियर न्यूमरेटर मुझे 1 चाहिए. तो कॉस को 1 कैसे बनाते हैं? ये कॉस को 1 बनाने के लिए सिंपल ट्रिक है ना. अगर x का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो कॉस तो बहुत अच्छे से 1 हो जाएगा. हाँ राइट. तो वी राइट हियर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस. देखिए पहला कॉस यहाँ पर cos 0 1 होता है. सो इट बिकम रूट ऑफ 1 माइनस 1 इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 2 अपॉन पाई. ये तो वैसे ही रहेगा. माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 अपॉन पाई. भाई ये भी वैसे ही रहेगा. सम ऑफ समेशन ऑफ cos 0 1 हो गया और डिनोमिनेटर चाहिए था 4n स्क्वायर माइनस 1. वेल एंड गुड, वो भी बन गया. तो अब सिंप्लीफाई करते हैं ना. रूट ऑफ 1 माइनस 1, this becomes 0 and the right hand side same. I copy the right hand side same. What else then? अब 2 रूट 2 को लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो वो बन जाएगा माइनस 2 रूट 2. राइट माइनस 2 रूट 2 इक्वल टू राइट हैंड साइड भाई माइनस 4 रूट 2 के साथ वही सेम. देन माइनस एंड माइनस आमने सामने कैंसिल. पाई एंड पाई दोनों जगह कैंसिल. रूट 2 एंड रूट 2 दोनों जगह कैंसिल. वेल वेरी गुड. So it becomes 2 upon 4 equal to the summation part only. और 2 upon 4 और भी सिंप्लीफाई लिख सकते हैं. 1 upon 2 equal to the summation part. ये बन गया हमारा डिडक्शन. So this is the deduction.